Hello everyone. So now we are talking about the relations. What is relation? इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा. तो रिलेशन जो डिफाइन है वो सबसेट्स होता है. किसका सबसेट्स होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रिलेशन. जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो वो इंडिविजुअली हर एक सबसेट एक रिलेशन कहा जाता है. सो relation is defined as the any subset of Cartesian product is called relation. Let's suppose मेरे पास एक सेट A है जिसके पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं. The second set is B having the element A, B and C. Then we calculate the Cartesian product of these two sets, that is A cross B. So these A cross B will give the result of set of ordered pair that will give the 1 comma A, 1 comma B, 1 comma C, 2 comma A, 2 comma B and 2 comma C. As we previously known, what the number of element in A cross B is 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. So total number of element in Cartesian product is 6. So according to number of element of A cross B, we count the subsets of regarding the Cartesian product. So the total subset of Cartesian product A cross B can be written as 2 to the power number of element in Cartesian product, that is 6. So 2 to the power is 6, that will become the 64. So total subset of Cartesian product is 64. Means what? Means what? The total 64 subsets of A cross B will become the relations, because the relation is the subset of Cartesian product. So relation is the subset of Cartesian product. These 64 subsets of Cartesian product A cross B is the individual relations. So in 64 element, in 64 subsets, the first subset will become the empty subset. ये 6 एलिमेंट जो हैं इनके हेल्प से हम ये 64 सबसेट्स लिखेंगे, जिसमें पहला सबसेट जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सबसेट. सो एम्प्टी सबसेट इज द फर्स्ट रिलेशन रिगार्डिंग द A cross B. द सेकेंड रिलेशन वी टेक one element at a time. The second subset will become A1 comma A element. थर्ड सबसेट इज 1 comma B एंड सो ऑन. जब ये एक एलिमेंट खत्म हो जाएंगे फिर हम वी टेक द 2 सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर. 2 सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, दो एलिमेंट का सेट लेके सेट बनाते रहेंगे. फिर 3 का, नेक्स्ट 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 6 सॉरी. एंड द लास्ट सबसेट विल बिकम द सबसेट विच ऑक्यूपाइड द ऑल 6 element of Cartesian product, that will be the last subset, that is R64. So total relation can be written as like R1, R2, R3 and so on up to R64. The first relation is called empty relation because this has no element, and the last relation is called the universal relation because the last relation is equal to the Cartesian product itself. Relation can be written anything. So we take any number of ordered pair element from this Cartesian product, that is called relation, because that will be the subset of that Cartesian product. So in general we denote or represent the relation by the capital R. So capital R is always this is the symbol of subset of A cross B. So relation is the subset of Cartesian product, that is A cross B. relation actually में है क्या? relation जो है सेट ए के एलिमेंट का एसोसिएशन है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेट बी के एलिमेंट के साथ. ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कॉमा बी के फ्रेम में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, बट रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू वो एलिमेंट रिलेट होने चाहिए. तो रिलेशन आर जो है वो हमेशा सेट ए से सेट बी के बीच में लिखा जाता है. इसको लिखने का और क्या रिप्रेजेंटेशन है? दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. और जो भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर एलिमेंट है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो साइड ए से बिलोंग होंगे और सेकंड पोजीशन पे जितने एलिमेंट होंगे वो साइड बी से. जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट 1 2 1 मतलब 1 और 2 है तो वो साइड ए से बिलोंग करेंगे, और जो सेकंड पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट है लाइक ए बी सी वो सेकंड साइड बी से बिलोंग करेंगे. दिस इज द सेट बी, नॉट सी. So A, B, C are the element which belongs to the second set and 1 2 are the element which belongs to the first set. If relation R is defined from set A to set B,
देन एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन बिलोंग्स टू द सेट बी। यही बात लिखिए जो बात मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी। सो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेशन का है। तो अल्टीमेटली रिलेशन एक्चुअली है क्या? रिलेशन जो है वो सबसेट। किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका सबसेट अगर आप लिखेंगे तो उसको आप रिलेशन कहेंगे। जैसे रिलेशन ए से बी में डिफाइन होता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों सेट सेम हो, पहला भी सेट ए है दूसरा भी सेट ए है, तो रिलेशन इसको क्या कहते हैं? रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, और रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रिलेशन आर बिलोंग्स टू द ए स्क्वायर, और आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू ए। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द रिलेशन फ्रॉम ए और रिलेशन ऑन ए, और दैट इज ऑल्सो रिटन एज द रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू ए। ये सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं आपके सामने। सेट ए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक सेट ए हैविंग द एलिमेंट ए कॉमा 1 कॉमा 2, और अगर हम इसका प्रोडक्ट इसी के साथ ही निकालते हैं तो उसको भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं। पहले हम दो सेट अलग अलग ले रहे थे, अभी दोनों सेट सेम ले रहे हैं। सो द ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विल गिव द 1 कॉमा 1 ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 कॉमा 1 ऑर्डर्ड पेयर एंड 2 कॉमा 2 ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि हम जानते हैं सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, तो दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 4 एलिमेंट मिलने चाहिए, लाइक 1 2 3 एंड 4। अब इसका कोई भी अगर सबसेट लिखा जाएगा तो रिलेशन होगा सेट ए पे, रिलेशन होगा सेट ए पे। सेट ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए या ए स्क्वायर। सो इसमें से कितने भी एलिमेंट आप कंसीडर कर लीजिए, इनसे सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक मैंने 1 1 और 1 2 सेलेक्ट करा, तो दैट इज द सबसेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो दिस ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन। तो रिलेशन अल्टीमेटली यही है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट लिखा जाएगा तो उसको रिलेशन कहा जाएगा, है ठीक है। तो कुछ और बात करते हैं, जैसे सेट ए में अगर n एलिमेंट है और सेट ए पे ही लिखा गया है तो ए क्रॉस ए में n इंटू एन मतलब n स्क्वायर होंगे, तो रिलेशन मतलब सबसेट। तो अब सबसेट क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज 2 की पावर n स्क्वायर। अगर ये है तो 2 की पावर n स्क्वायर। सिंपल, क्लियर बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ 2 सेट के बीच में क्रॉस कराया जा सकता है, 2 सेट के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इससे ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं। जैसे सेट के अंदर अगर 1 2 एलिमेंट है तो आप 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए। बस चेंज क्या आएगा, वहाँ पे 2 क्रॉस के प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आ रहे थे वो पेयर फॉर्म में आते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 3 सेट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे जो पेयर हो रहे थे उधर, इधर वो ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। ट्रिपलेट्स इन द सेंस कि अगर ए क्रॉस ए निकालोगे तो 1 कॉमा 1, जैसे हमने यहाँ निकाल लिया 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 और 2। तो ए क्रॉस ए को अगर हम फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारे एलिमेंट 1 क्रॉस 2 के साथ क्रॉस हो जाएंगे। तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 ये 3 एलिमेंट, 1 कॉमा 1 कॉमा 2 ये 3 एलिमेंट, 1 कॉमा 2 कॉमा 1 ये 3 एलिमेंट, 1 कॉमा 2 कॉमा 2 इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज 2 कॉमा 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 कॉमा 2 एंड सो। तो इस तरीके से जब अगर हम 3 एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यूज मिलेंगी, जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो ट्रिपलेट्स फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चेंज आएगा जब हम 3 की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की और बात कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो करा जाता है वो 2 तरीके से करा जाता है। जैसा कि आपने सेट में भी पढ़ा होगा कि सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में भी हम रिलेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को मैं डेफिनेशन फॉर्म भी कहता हूँ क्योंकि इसमें हम डेफिनेशन वाइज रिलेशन या किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल ले लिया, लाइक यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, जैसा कि अपन पहले से भी जानते हैं, रोस्टर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं एलिमेंट्स को। जैसे कोई रिलेशन ए और बी साइड गिवन है, इस पर लिखा गया है, तो कुछ एलिमेंट ए के और कुछ एलिमेंट बी के मैप करके मैंने एक रिलेशन लिखा, लाइक 1 कॉमा 2 मैप हुआ, फिर 2 कॉमा 3 मैप हुआ और फिर 3 कॉमा 4 मैप हुआ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए
और वो उसका सबसेट होता है तो रिलेशन बन गया। तो इस तरीके से जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म में रिलेशन कहा जाता है। लेकिन जब सेट बिल्डर की बात होती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे हर एलिमेंट x, y फॉर्म में है तो सबसे पहले उनका रिप्रेजेंटेटिव बताना पड़ता है कि वो उनको रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल क्या है। तो हमेशा हम इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 वेरिएबल आते हैं, पहले हम उस वेरिएबल के लिखते हैं x, y, फिर इस सिंबल होता है सच दैट। सच दैट का मतलब है कि ये जो आगे लिखा हुआ है अब आगे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना डेफिनेशन। तो x, y किस तरीके से रिलेटेड है, एक्सप्रेशन और रिलेशन ऑफ x, y। सच दैट जो पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर को जो रिलेशन a क्रॉस b पे लिखा गया है वो सेट ए पहले एलिमेंट से पहले सेट ए से बिलोंग करता है और y जो है वो हमेशा b से बिलोंग। ऐसा नहीं हो सकता ये x एलिमेंट जो भी होगा वो b से बिलोंग करने लग जाए, वो हमेशा फर्स्ट सेट a से ही बिलोंग करेगा और y हमेशा सेकंड सेट b से ही बिलोंग करेगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया मैंने बोला कि लाइक ये 1, 2, 2, 3, 3, 4 ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसी रिलेशन को मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहता हूँ तो x, y में किस तरीके, x क्या है फर्स्ट एलिमेंट लाइक 1, 2, 3, y क्या है सेकंड एलिमेंट लाइक 2, 3, 4। तो आप देखेंगे हर ऑर्डर्ड पेयर में इन दोनों में एक बेसिक रिलेशन दिख रहा है कि 2 1 से 1 ज़्यादा है, 3 2 से 1 ज़्यादा है, 4 3 से 1 ज़्यादा है। इसका मतलब जो y वैल्यू है ना ऑर्डर्ड पेयर की वो x से 1 ज़्यादा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा मैथमेटिकली, y कैन बी रिटन एज x + 1 सच दैट the x is always belongs to set A like 1, 2, 3 and y is always belongs to set B like 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 रखी जाएगी तो 1 + 1 y2 हो जाएगा। तो x 1 रखोगे तो y2 मिल रहा है आपको, x अगर 2 रखोगे तो 2 + 1 y3 मिल रहा है, x अगर 3 रखोगे तो 3 + 1 y4 मिल रहा है। समझ पा रहे होंगे। तो एक और फॉर्म होता है जिसको आप डायग्राम फॉर्म कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। सेट को भी हम सर्कल या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स या फिर किसी भी बेसिक ज्योमेट्री बॉक्स या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सेट का भी एक फॉर्म होता है। आप इसको डायग्राम फॉर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी काम आता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास सेट ए था, 1, 2, 3 एलिमेंट है, सेट बी था उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपने क्या देखा कि इसको विजुअली अगर रिप्रेजेंट करना है तो 1 किससे एसोसिएट हुआ था 2 से, तो 1, 2 तो 1 मैप हो जाएगा 2 के साथ। 2 जो है वो किसके साथ एसोसिएट हुआ था 3 से, तो 2, 3 के साथ। 3 जो हुआ था 4 के साथ तो 3, 4 के साथ। तो इस तरीके से आप विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक छोटे से एग्जाम्पल से एक बात समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई रिलेशन ए से बी में दिया है और वो इस तरीके से दिया है कि a, 1, b, 2, c, 3, a, 2 और आपको सेट ए और सेट बी की बात करनी है तो हमें रिलेशन देके सेट ए और सेट बी पूछा है। तो आपको ने पढ़ा है कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट सेट से एसोसिएट होता है। इसका मतलब सेट के एलिमेंट क्या होंगे a, b, c। a ऑलरेडी आ चुका है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो a दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो a, b, c दिस विल बी द फर्स्ट सेट। बी सेट क्या होगा, बी सेट द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट से मिलकर बनने वाला सेट है उसी को बी कहा जाता है। लास्ट सेट लाइक 1, 2, 3, 2 ऑलरेडी आ चुका है तो वापस नहीं आएगा, यानी 1, 2, 3 आर द सेट। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं रिलेशन भी दिया होगा तो हम डायरेक्ट सेट ए और सेट बी निकाल सकते, एकदम सिंपल है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, सारी बातें इंपॉर्टेंट, एक एक करके सब सीखेंगे। 11th क्लास के कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे आराम से बनेगा। ठीक है, ये बेसिक जेई वगैरह में तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, नॉर्मल चीज़ का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपन को ये सब बातें पता होनी चाहिए। अगर ये सब बातें पता नहीं है, बहुत बेसिक फंडामेंटल, अगर यही मालूम नहीं होगा तो हम अच्छा जेई का क्वेश्चन कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल है, फंडामेंटली हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है मैथ्स के अंदर। ठीक है, अगर मैथ्स के अंदर या बेसिक सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट होगा, फंडामेंटली अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम चीज़ों को क्लियरली सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन होता क्या है ये समझते हैं। तो जैसे कोई रिलेशन आर जो है वो ए से बी में डिफाइन है अगर, तो आपको मालूम है पहले से कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जिसको हम एक्स कहते हैं वो हमेशा इसी सेट से बिलोंग करता है। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा होता है उसका सेकंड सेट एलिमेंट जिसको वाई कहते हैं वो हमेशा दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है।
इसी को लिखने का तरीका ये भी है, x इज रिलेटेड टू y, ये भी चलता है। अब देखिए, तो डोमेन जो होता है क्या होता है, जो भी रिलेशन लिखा गया होगा उसके ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट में फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है वो डोमेन होता है। लाइक सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन। सेम बात कहिए, लेट्स सपोज मैंने रिलेशन R लिखा है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट है उनसे बनने वाला सेट, यानी 1, 2 और 3 जो है फर्स्ट पोजीशन पे है ऑर्डर्ड पेयर में, तो 1, 2, 3 से बनने वाला जो एक सेट होगा उसी को आप डोमेन ऑफ रिलेशन कहेंगे। सिंपल बात है, आई बात समझ। नेक्स्ट बात करते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। ये भी बहुत सिंपल सी बात है। जब भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनसे बनने वाला जो सेट है उसको रेंज ऑफ रिलेशन। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन को R ऑफ R लिखता हूँ मैं, डोमेन ऑफ रिलेशन को D ऑफ R लिखता हूँ। तो अगर मैं इसी रिलेशन को एग्जाम्पल में ले लूँ तो ये सेकंड पोजीशन पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो 2, 3 और 4 से मिलने वाला जो सेट होगा उसी को आप रेंज ऑफ रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट बात होती है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं वो आगे चल के हम फंक्शन में भी पढ़ते हैं। तो कोडोमेन और रेंज में एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है। रेंज जो होता है वो इमेज होता है, किसका इमेज, पहले एलिमेंट के ऑर्डर पे। पहले जैसे 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, तो ये जो इमेज पॉइंट का कलेक्शन है उसको रेंज कहते हैं। लेकिन इसमें रेंज से बात नहीं होती है। ये कहता है कि अगर रिलेशन जो है वो A से B में डिफाइन है तो जो B सेट होगा ना, कंप्लीट B सेट, जो कंप्लीट B सेट होगा ना उसी को मैं उस कंप्लीट सेट को कोडोमेन ऑफ रिलेशन बोल दूंगा। यानी उसको मतलब नहीं है कि B सेट से कितने एलिमेंट आए कितने नहीं आए, लेकिन कोडोमेन कहता है कंप्लीट सेट भी जो है वो कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन क्या होगा कि इफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम R A to B then complete set B is called the codomain. So if relation R defined from set A to B, that is R is defined from A to B, then this set, complete set B is called the codomain of relation. That is denoted by C of R. तो अगर रिलेशन A से B में डिफाइन था, सेट A ये था हमारे पास, सेट B ये था, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन लिखा था जिसमें रेंज के एलिमेंट कितने थे, 2, 3, 4 थे, लेकिन 2, 3, 4 के अलावा और बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए, यानी कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन में सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। एक बेसिक सी बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए, रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा इसके अंदर एलिमेंट मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट हम जरूरी नहीं वो रेंज के अंदर मौजूद रहे। यानी रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशन की बात करी हम लोगों ने। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले समझ में आना चाहिए था, ऑर्डर्ड पेयर। फिर हमें जब तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बनेगा हम रिलेशन के बारे में बात नहीं कर सकते थे। फिर हमने उसके बाद हमने रिलेशन सीखा। रिलेशन आने के बाद ठीक है, आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं उसी तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे रिलेशन के एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी लेवल के एग्जाम्पल हैं, बेसिक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये सब बातें जो थी वो रिलेशन की थी। अगले लेक्चर में हम फंक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।